functions. The first one is allocation, the second one is linking, third one is reallocation, and the fourth one is loading. Okay, so this question is important for the INSEM as well as the INSEM also. Okay, you have to write the definition of loader, the working of loader, and the 4 functions of your loader. After that, we have seen the assembler. The next component of system software is the assembler. The very basic definition of assembler is what? Assembler is a translator which translate assembly language program into the machine language program, and it does this with the help of some data structure which we are going to study in the next lectures, right? After that, we have seen next component is a macro processor. All of you know about the macros. You have used macros in your system, microprocessor assignments, practical assignments, right? So the same macro, how the macro processor handles this macro, we are going to discuss in the unit number 2 in depth, right? After that, we have compiler and we have debugger. Compiler and debugger, you all know about the what is compiler and what is debugger. Okay, this was the first point, which is components of system software. We have already finished it in the yesterday's lecture. Now in today's lecture, the lecture number 2, we are going to discuss about the assembly language. You all know about the assembly language, right? In microprocessor, I think the processor was 80386 or 8086. Okay, every processor has its different assembly language. Okay, but in this case, okay, as I told you before in yesterday's lecture, I told you that we are going to develop or design a assembler in this unit number 1. Okay, so we are going to program an assembler. Okay, we are going to build an assembler. Okay, for that we need an assembly language first as the input, and then how your assembler will scan that program, input program, and how it will convert that program into the object code. We have to study in this unit only. Okay, so for this purpose, as I already said, every microprocessor is having different assembly languages. Okay, so for example, I am having i3 processor. Okay, someone is having i7 processor, someone is having Pentium 4 processor. So every processor is having different assembly language. Okay, so we need to study all these assembly languages to develop an assembler for a particular machine. Okay, and that will be the difficult task for us. So we are considering a hypothetical assembly language. Okay, hypothetical means what? The imaginary. Okay, which is not physically present. Okay, which is the designed only for the example purpose, only for the considerable purpose. Okay, so we are going to use an hypothetical language. Your syllabus is having a Dhamdare book. Okay, and in that book, that Dhamdare author has designed that hypothetical assembly language. Okay, which is having some kind of mnemonics, some kind of assembly statements. We are going to study that assembly language first, and then we will start developing an assembler. Okay, any doubt till now? Hello, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. ओके, सो अभी तक मैंने क्या बोला कि आपको इस यूनिट में क्या करना है, असेंबलर को बनाना है, राइट? ओके, जैसे कि हमने कल बोला था कि एवरी मशीन इज हैविंग डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज. अगर आपको असेंबलर बनाना है, ओके, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा? आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. लेकिन हम बोल रहे हैं कि हर एक मशीन के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेजेस है. तो हर एक आपके पास i9 है, मेरे पास i3 है, किसी और के पास i7 होगा. ओके, तो हर एक असेंबली लैंग्वेज हम स्टडी नहीं करेंगे to build an assembler. Okay, so our syllabus has given us a Dhamdare book, and in that Dhamdare book, that author has designed a particular assembly language, and that assembly language is called as hypothetical assembly language. Okay, we are going to study that language first, and then we will use that input program, that assembly language program, as an input for our assembler. Okay, and then we will construct assembler one by one step. Okay, so first of all, we will study some important points about the assembly language. Let me share the PPTs with you, then you will understand. Just a second. Yes, is the screen visible? Screen दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so our next point is what? Assembly language. Okay, so basically assembly language is a low level language.
Okay, so C, Java are the high level languages, okay, and the assembly language is low level language or middle level language you can say. And after assembly language there is a machine language. Okay, in this language hierarchy assembly is in the middle layer. Okay, so first point is what? Assembly language is a low level language. All we know that it is a low level language. Okay, the next point is what? An assembly language is machine dependent. Okay, जैसे कि हमने बोला हर एक मशीन के लिए अलग अलग होती है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन सेट में अलग अलग होती है. कुछ इंस्ट्रक्शन सेट किसी में ज्यादा है, किसी में कम है. Okay, किसी में कॉम्प्लेक्स है, किसी में सिंपल है. Okay, so this assembly language is machine dependent. For every machine this language is different. Okay, again the third point is the same. It differs from computer to computer, or we can say it differs from the processor to processor. Okay, assembly language processor की होती है ना, so it differs from the processor to processor, or you can say computer to computer. Okay, but so why we need to prefer this assembly language? Because writing programs in assembly language is very easy as compared to machine, or we can say the binary language. Okay, so why we need to study this assembly language, or why we need to prefer this assembly language? Because it is very difficult to write a program in the machine language. Okay, machine language means what? Binary language, which is understandable by the computer. Okay, so that is very difficult task. Okay, to ease that task the author or the developer have developed the assembly language. Okay, so we are going to prefer the assembly language over machine language because it is easy as compared to writing program into the machine language. Okay, so these are the basic about the assembly language. Okay, so अभी आप ये लोग क्या करने वाले हो? असेंबली लैंग्वेज सीखने वाले हो. जैसे कि आपको नाजम असेंबलर जो है हमारा, जो आपने सेकेंड ईयर में यूज किया होगा नाजम. ओके, उसकी एक असेंबली लैंग्वेज थी, आप लोगों ने वो पढ़ लिया है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज हियर अ हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द ऑथर ढमढेरे. ओके, द सिलेबस is having the full name of that book. You can refer that book from the library and you will get to know that these points. Okay, so assembly language programming terms. Okay, किसको क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको देखना है. Okay, so what is the location counter? Okay, location counter points to the next instruction. जैसे कि आपने सुना होगा प्रोग्राम काउंटर के बारे में. ओके, COA में पढ़ा होगा या आपके माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द प्रोग्राम काउंटर. ओके, तो प्रोग्राम काउंटर इज अ काउंटर व्हिच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. द सिमिलर थिंग but the name is what? Location counter. Okay, so location counter points to the next instruction. Okay, after that आपका एक प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, उसमें जो भी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है उन्हें हम क्या बोलेंगे आगे से? लिटरल्स. ओके, एनी कांस्टेंट वैल्यू इन योर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज लिटरल्स. ओके, तो इसका एक बेसिक सिंटैक्स है इन दिस हाइपोथेटिकल लैंग्वेज. आपका लिटरल जो है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा. ओके, सो इज इक्वल टू इन सिंगल कोट 5 और सिंगल कोट कंप्लीट. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लिटरल. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द लिटरल? जिसके सामने इक्वल टू साइन रहेगा दैट विल बी योर लिटरल. ओके, आफ्टर दैट सिंबल्स. ओके, सो द नेम ऑफ द वेरिएबल्स एंड द लेबल्स इन योर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सिंबल्स. ओके, तो सिंबल्स किसको बोलोगे आप? जो भी कुछ वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में है या लेबल्स है. लेबल आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर में कोई लूप आपको यूज करना है असेंबली लैंग्वेज में तो आप कुछ लेबल देते हो. फॉर एग्जांपल लूप कोलन एंड उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके, दैट विल बी योर लेबल. वी विल सी इन द एग्जांपल आल्सो व्हाट इज लेबल. ओके, सो व्हाटएवर द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड द लेबल्स in your program, that things are called as symbols in our assembly language, in our hypothetical assembly language. After that procedures, जो भी आपके कुछ मेथड्स है. मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही है. Okay, yes, now Yeah, now it changed. okay, so assembly language programming terms हम देख रहे थे. So the first point is what? Location counter. The name of the location counter is same as the program counter. Program counter का काम क्या है? It points to the next instruction. Okay, so similarly आपको अभी क्या बोलना है? उसे program counter नहीं बोलना है, आपको बोलना है location counter. After that literals. ओके, तो लिटरल्स ये आपके लिए नया टर्म है. ओके, तो आपके प्रोग्राम में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है, ओके, तो उनको बोलेंगे आगे से हम लिटरल्स. ओके, सो लिटरल्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आपका जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसके सामने या उसके प्रेसिडेंट इज इक्वल टू साइन रहता है. ओके, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू इन सिंगल कोट 3. ओके, दैट विल बी योर लिटरल. ओके, और आपके प्रोग्राम में बस 3 ही है, दैट विल बी योर कांस्टेंट.
So how you will identify the constant and literals? अगर constant value के सामने equal to sign है, that will be your literal. अगर नहीं है, that will be your constant. जो कि हम आगे प्रोग्राम में देखने वाले. Okay. Now next one is what? Symbols. Okay. तो name of the variables and the labels in your program is called as the symbols. अब अभी तक आप क्या बोलते थे? Variables. Okay. For example, int a. Okay. तो आप क्या बोलोगे? A is my variable. So आगे से हम क्या बोलेंगे? Symbols. Okay. और labels आपको पता होगा, किसी इंस्ट्रक्शन के सामने एक नाम रहता है और उसके बाद कोलन रहता है. ओके, दैट विल बी योर लेबल. ओके, तो लेबल्स एंड वेरिएबल्स को हम आगे से क्या बोलेंगे? सिंबल्स. ओके, एंड द लास्ट टर्म्स इज व्हाट? प्रोसीजर्स. ओके, जो भी आपके प्रोग्राम में मेथड्स या फंक्शंस है उनको हम आगे से बोलेंगे प्रोसीजर्स. ओके, दीज आर द सम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टर्म्स: एलसी, लिटरल, सिंबल्स एंड प्रोसीजर्स. एनी डाउट इन दिस? इनका एक्चुअल यूज हम आगे प्रोग्राम में देखने वाले हैं. Yes, any doubt in this? No, ma'am. Okay, so we will move further. Next slide. Yes, now there are some assembly language statements. I think ये आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी हम repeat करेंगे. Assembly language statements. Okay, there are three types of statements. The first one is imperative statement. The second one is declarative or declaration statements, and the final one is what? The assembly directive. Okay, so imperative statements क्या करते हैं? ये statements के पास 11 निमोनिक्स का एक सेट है और ये एक्शन एक डिफाइन करते हैं कि आपके प्रोग्राम में करना क्या है, आपको करना क्या है. फॉर एग्जांपल ऐड, अभी आपको पता होगा ऐड ax, bx, मतलब क्या? ax के वैल्यू की bx के साथ एडिशन करो. ओके, दैट इज योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, लेकिन हम ax एंड bx नहीं यूज करेंगे बिकॉज दैट वाज योर 80386 असेंबली लैंग्वेज, और यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ने वाले. यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज पढ़ने वाले. ओके, तो जैसे कि आपके पास ax, bx, cx, dx था, यहाँ पे आपके पास है a रजिस्टर, b रजिस्टर, c रजिस्टर एंड d रजिस्टर. ओके, और उसको यूज करने के कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो इंपेरेटिव मतलब क्या? एन एक्शन. ओके, फॉर ऐड, सब, मूव, ओके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे एक्शन जो है, अगर आपका स्टेटमेंट उन निमोनिक से स्टार्ट होता है, ऐड से स्टार्ट होता है, सब से स्टार्ट होता है या मल्ट से स्टार्ट होता है, दैट स्टेटमेंट इज व्हाट योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, तो इस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज में आपको 11 निमोनिक्स दिए हैं. ओके, अगर आपका स्टेटमेंट उन 11 निमोनिक में से एक के साथ स्टार्ट होता है, दैट स्टेटमेंट विल बी योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes, ma'am. ओके, तो सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. ओके, तो इसके पास दो टाइप्स है, डीसी एंड डीएस. ओके, डीसी स्टैंड्स फॉर डिक्लेयर कांस्टेंट, डीएस स्टैंड्स फॉर डिक्लेयर स्टोरेज. ओके, तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर डीसी या डीएस आपको दिखाई देता है, दैट स्टेटमेंट विल बी योर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. तो हाउ टू आइडेंटिफाई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट? If your statement contains DC or DS, then your statement will be declarative statement. Okay, and the next one is what? Assembler directive. Actually, assembler directive are not the statements; these are the instructions for the assembler. Okay, assembler directives are the instructions for assembler what to do. Okay, for example, start. Okay, तो start क्या बोल रहा है कि your program स्टार्ट के सामने एक आपको मेमोरी लोकेशन दिया जाता है, तो उस मेमोरी लोकेशन से आपका प्रोग्राम को सेव करने के लिए स्टार्ट करो. इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द असेंबलर. ओके, एंड, अभी आपके प्रोग्राम का एंड हो चुका है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द असेंबलर. ओके, सो असेंबली डायरेक्टिव आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असेंबलर, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी 5 असेंबलर डायरेक्टिव्स. ओके, उनमें से फेमस दो है, विच इज स्टार्ट एंड एंड. ओके, तो ये आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन हम जब एग्जांपल देखेंगे तो वी विल केम टू नो दैट हाउ टू यूज दिस असेंबलर डायरेक्टिव्स और हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इंपेरेटिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, सो वी विल स्टडी one by one. The first one is what? Imperative statement. Okay, so the imperative word का meaning है mnemonics. Okay, so imperative statement मतलब क्या? Imperative का मतलब क्या है? Mnemonics. जिस statements में mnemonics आते हैं, that statement will be your imperative statements. Okay, and these statements are the executable. ये statements actual में execute होते हैं, जैसे कि declarative statement and assembler directive. ये actual में execute नहीं होते. Declarative statement बताते हैं कि क्या declare करना है, constant declare करना है या storage declare करना है. Assembler directive क्या बताते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, अभी क्या करना है, आगे इंस्ट्रक्शन बताता है. ओके, लेकिन जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, दिस स्टेटमेंट्स आर द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. ये एक्चुअली प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इनको.
Okay, so these imperative statement indicates an action to be taken during the execution of your program. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, एक imperative statement क्या करता है, ये एक्शन इंडिकेट करता है कि करना क्या है, आपके एग्जीक्यूशन में क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मूव आर दिया है, MOVER. ओके, अभी तक आपने मूव यूज किया होगा, MOV. ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें मूव आर एंड मूव एम दो टाइप्स के मूव स्टेटमेंट्स है. ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है BREG, दैट मीन्स यूर बी रजिस्टर्ड. ओके, जैसे कि आपका AX BX था, सिमिलरली यहाँ पे क्या है BREG. यहाँ पे चार टाइप्स के रजिस्टर्स है, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर. मतलब AREG, BREG, CREG एंड DREG. ओके, जैसे कि वहां पे क्या था AX BX CX एंड DX. सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा AREG BREG CREG एंड DREG. ओके, सो मूव आर BREG, X. नाउ X इज अ वेरिएबल. ओके, लेकिन इस लैंग्वेज में आपको वेरिएबल को क्या बोलना है, सिंबल. ओके, जैसे कि हमने अभी देखा कि नेम ऑफ योर लेबल्स एंड वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सिंबल्स. तो X इज अ वेरिएबल बट इन आवर लैंग्वेज वी आर कॉलिंग इट एज अ सिंबल. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, मूव आर मतलब क्या, रजिस्टर में मूव करो, और मूव एम मतलब क्या, मेमोरी ऑपरेंड में मूव करो. अभी ये जो सिंबल है आपका वेरिएबल है, इट इज नथिंग बट द मेमोरी ऑपरेंड, राइट. सो मूव आर बी रजिस्टर कॉमा एक्स मतलब क्या है, एक्स की जो भी कुछ वैल्यू है वो रजिस्टर में, अभी रजिस्टर का नाम क्या दिया है यहाँ पे BREG, उसमें मूव करो. अगर यहाँ पे ऐसा होता मूव एम ए रजिस्टर कॉमा वाई, तो क्या करते हम, जो रजिस्टर है हमारा ए रजिस्टर उसकी वैल्यू वाई में चली जाती. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान एक देना है कि मूव आर बी रजिस्टर कॉमा एक्स, सिंटैक्स ऐसे ही होना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल मूव आर के बदले ऐड भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी ऑलवेज द रजिस्टर एंड द सेकंड इज ऑलवेज बी द मेमोरी ऑपरेंड. ओके, जो आगे मैं आपको बताऊंगी सिंटैक्स क्या है. ओके, अभी मूव आर क्या है आपका, निमोनिक है. ओके, जैसे कि अभी हमने बोला जिस स्टेटमेंट में निमोनिक अवेलेबल रहेगा दैट स्टेटमेंट विल बी योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, तो मूव आर एक क्या है, निमोनिक है. स्टॉप भी एक निमोनिक है, रीड भी एक निमोनिक है, और ऐड जो है वो भी क्या है, निमोनिक है. तो ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है. ओके, सो एनी डाउट इन इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई. अभी हमें बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट नहीं स्टडी करना है, हमें बस 11 निमोनिक्स दिए हैं. ओके, तो जो आगे हम देखेंगे उन 11 निमोनिक्स में से अगर एक कोई आपके स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो दैट स्टेटमेंट विल बी योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो. No, ma'am. Okay, so the next one is what, declarative statements. Okay, so declarative statements are for the reserving memory for variables. Okay, declaration जिसकी normal C language में हमारा था int A, int B. Okay, similarly इस assembly, इस hypothetical assembly language में कैसे variables को declare करना है. Okay, we can do this thing by two types. First one is what, DS, and the second one is DC. DS for declare storage and DC for the declare constant. Okay, and by using these declarative statements we can specify the initial value of a variable. तो initial value क्या होनी चाहिए variable की, हम यहाँ पे set कर सकते हैं by using the declarative statements. Okay, so how to identify your declarative statements? अगर आपके statement में DS या DC available है तो that statement will be your declarative statement. Okay, so how to declare a variable, how to declare a symbol. variable को हम अभी क्या बोलेंगे, symbol बोलेंगे. तो how to declare a symbol by using these two techniques. The first one is what, DS. Okay, so syntax क्या है, the first one is label or the symbol. Okay, label we can say label or the symbol. उसके बाद हमें आना चाहिए DS. अभी DS का फुल फॉर्म क्या है, स्टोरेज, डिक्लेयर स्टोरेज. ओके, तो उसके सामने क्या आना चाहिए, साइज आनी चाहिए, कितना मेमोरी उसे एलोकेट करना है, 1 बाइट करनी है, 2 बाइट करनी है, लाइकवाइज. ओके, सो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है x ds1. ओके, तो x मतलब क्या, योर सिंबल, DS मतलब डिक्लेयर स्टोरेज, एंड 1 मतलब 1 बाइट और 1 वर्ड ऑफ साइज उसके लिए अलोकेट हो जाएगी. ओके, द सिमिलरली डिक्लेयर कांस्टेंट. ओके, अभी डिक्लेयर कांस्टेंट को आपको ध्यान देना है, फर्स्ट थिंग इज सिंबल, उसके बाद DC, और उसके बाद साइज नहीं आएगी, उसके बाद आएगी वैल्यू. ओके, कांस्टेंट स्पेसिफाइंग वैल्यू, लेकिन ये किस में है, सिंगल कोट में है. तो आपको पता होना चाहिए 5 इज व कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सो y की इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है. ओके, और x का स्टोरेज क्या है, 1 बाइट 1 वर्ड एनी. अभी ये क्या है, लैंग्वेज हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज है, मतलब यूजर ने ही बनाई है इस लैंग्वेज को, और उसकी कुछ अकॉर्डिंग कंसिडरेशन के साथ बनी है. अगर यूजर बोलता है 1 वर्ड या 1 वर्ड
और 1 बाइट होती तो 1 बाइट, वो दैट डजंट मैटर. ओके, सो XDS1 मतलब डिक्लेयर स्टोरेज 1 वर्ड ऑफ साइज एंड YDC5 मतलब डिक्लेयर कांस्टेंट, मींस y की इनिशियल वैल्यू होगी 5. एनी डाउट इन दिस? यस? No, ma'am. Okay, so third part of your assembly language statement is what? Assembler directive. Okay, so assembler directive instruct the assembler to perform certain action during the assembly of a program. Okay, so these statements are not the executable statement, these are the only instructions. Okay, so famous assembler directives are the start and end. ओके, स्टार्ट के साथ हमेशा आता है एड्रेस कांस्टेंट. ओके, तो ये स्टार्ट जो असेंबलर डायरेक्टिव है ये क्या बताता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट के साथ आता है एड्रेस कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्टार्ट 100. ओके, तो स्टार्ट 100 मींस व्हाट? आपके प्रोग्राम की पहली लाइन 100th लोकेशन को सेव होने के लिए स्टार्ट रहेगी. ओके, मतलब नेक्स्ट लाइन आएगी 101 पे, थर्ड लाइन आएगी 102 पे, फोर्थ लाइन आएगी 103 पे. मतलब स्टार्ट इज एन असेंबलर डायरेक्टिव व्हिच इंस्ट्रक्ट्स द assembler to start the save your program from the location 100. Okay, now end क्या बताएगा assembler को? अभी जो आपने प्रोग्राम सेव किया था वो क्या हुआ है? खत्म हुआ है. Okay, so this is what your instructions for the assembler. Okay, so these three are the types of assembly language statements. The first one is imperative statement, उसके बाद हमने देखा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टिव. ओके, तो 5 मिनी बहुत सारे असेंबलर डायरेक्टिव्स है यहाँ पे, लेकिन उनमें से हम 5 स्टडी करने वाले हैं फॉर यूनिट नंबर 1. ओके, 5 असेंबलर डायरेक्टिव वी आर गोइंग टू स्टडी. उसके बाद 11 न्यूमोनिक्स फॉर द इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स एंड DS एंड DC फॉर द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम 11 न्यूमोनिक्स देखते हैं कौन से है. तो जो हमने कंसीडर किया है हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज. ओके, सो ये 11 डिफरेंट ऑपरेशन को सपोर्ट करती है और वी कैन से इट इज हैविंग 11 डिफरेंट निमोनिक्स. ओके, तो उसमें से फर्स्ट है स्टॉप, देन ऐड, सब, मल्ट, मूव आर, मूव एम, COMP फॉर कंपैरिजन, BC फॉर ब्रांच ऑन कंडीशन, DIV फॉर डिवीजन, रीड एंड प्रिंट. ओके, सो ये 11 डिफरेंट निमोनिक्स आपके पास अवेलेबल है इन दिस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज. और आपको इंपेरेटिव स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है? इनमें से कोई एक अगर आपके स्टेटमेंट में अवेलेबल है तो दैट स्टेटमेंट विल बी योर इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद डिक्लेरेटिव कैसे फाइंड आउट करना है? अगर आपके स्टेटमेंट में DC या DS है तो वो होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स. ओके, और उसके बाद असेंबलर डायरेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करना है? फिलहाल तो हमने अभी देखे स्टार्ट एंड एंड. ओके, अगर स्टार्ट आपके स्टेटमेंट में दिखता है तो वो है असेंबलर डायरेक्टिव, अगर एंड है तो वो है असेंबलर डायरेक्टिव अगेन. ओके, और 3 है जो कि हम पढ़ेंगे अभी. तो ये है 11 डिफरेंट ऑपरेशंस और 11 डिफरेंट निमोनिक्स व्हिच इज सपोर्टेड बाय योर हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज. ओके, अगेन दिस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट्स 4 रजिस्टर, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर एंड D रजिस्टर. ओके, सो 3 रजिस्टर है इसके पास और 11 डिफरेंट निमोनिक्स है. डाउट टिल नाउ? Yes, any doubt? Am I audible? No doubt, ma'am. Okay, so let's see one program. Okay, and then we will find out the types of statements. ओके, सो जैसे कि अभी हमने बोला कि असेंबलर डायरेक्टिव बेसिकली हमें 5 स्टडी करने हैं और 5 और कॉमन जो है स्टार्ट एंड एंड है. ओके, सो दीज आर द बेसिक असेंबलर डायरेक्टिव्स एंड दीज आर सम एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स. अभी इसमें है ओरिजिन, EQ, यूजिंग, ड्रॉप एंड LTRG. ओके, सो यूजिंग एंड ड्रॉप are used in the IBM processor और origin, EQ, LTRG we are using in this hypothetical assembly language. Okay, तो ये origin क्या करता है? जैसे कि start बोलता है कि start करो, end बोला है कि end हो रहा है प्रोग्राम, तो इन हर एक का कुछ तो यूज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, बस आपको याद रखना है कि 5 assembly directive you are going to study. The first one is start, second one is end, third one is origin, fourth one is EQ and the final one is LTRG. ओके, सो इनका यूज मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताती हूँ. ठीक है, तो अभी हम सैंपल असेंबली कोड देखते हैं. ओके, सो ये है मेरा सैंपल असेंबली कोड, एक मेरा छोटा प्रोग्राम है यहाँ पे. ओके, और आपको इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट?
पहले बताओ कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के टाइप कितने? थ्री है, राइट. फर्स्ट वन इज व्हाट? imperative, सेकंड? declarative, थर्ड? assembler directive. ओके, वेरी गुड. तो ये 3 टाइप्स है. तो हर एक स्टेटमेंट, अभी आपको यहाँ पे 8 स्टेटमेंट दिखाई देंगे, फर्स्ट सेकंड अप टू 8. ओके, तो हर एक स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन से टाइप का है? Assembly directive. Assembler directive, because it is starting or it is having a mnemonic or keyword start. Okay, second statement? Imperative, Third? imperative, Fourth? imperative, Fifth? imperative, Sixth? assembler directive. नहीं, ये declarative statement है. Declarative, very good. Seventh? Declarative. And eighth? 8 assembler directive. Very good. So you can identify the types of your statements. Okay, so start end, मतलब first and eighth statement is AD, second to fifth 5, these are the imperative statement, and 6 7 are the declarative. Okay, similarly यहाँ पे हमने first वाला AD है, second, third, fourth, fifth IS, AD for assembler directive, IS for imperative statements, and 6 7 DSA, that is declarative statements, and 8 again AD है. So you can identify the types of your statements. Okay. So now advanced assembler directives 3 है हमारे पास, origin, EQ and LTRG. Okay, before starting the origin I would like to tell you about the LC. Okay, so LC का full form क्या है? Hello, what is LC? Location count. ओके, लोकेशन काउंटर. ओके, तो ओरिजिन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एलसी के बारे में जानना होगा. तो लोकेशन काउंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके, एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग स्टार्ट 100. नाउ यू कंसीडर द प्रोग्राम. हाँ, फॉर एग्जांपल this is what my program, start 100. Okay, so start 100 is my assembler directive, start is my assembler directive, and which instruct the assembler that start saving your program for the location, from the location 100. Okay, तो next जो line है मेरी move breg is equal to 2. okay, ये line location 100 पे save होगी. उसके बाद उसकी जो next line है वो होगी 101 पे, क्योंकि LC always incremented by 1. ओके, सो 100, 101, 102, 103 लाइकवाइज ये सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा. मतलब एलसी की जो नेचुरल टेंडेंसी जो है वो क्या है? +1 से इंक्रीमेंट होना. ओके, सो फर्स्ट लाइन विल बी सेव्ड एट द 100, सेकेंड लाइन 101, थर्ड लाइन 103, फोर्थ लाइन 104 likewise. Okay, so if the user wants to save the second line in some another location, okay, for example मेरे 4 लाइन का कोड है और मैंने पहली लाइन की है सेव 100 लोकेशन पे. ओके, सो दूसरी लाइन कौन सी लोकेशन पे सेव होगी? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. ओके, तो आपको क्वेश्चन पता चला है मैं क्या बोल रही हूँ? We are talking about the LC, that is location counter, and the location counter points to the next instruction, right? और जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था अभी start 100. ओके, तो start 100 उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो 100th लोकेशन को सेव होने के लिए स्टार्ट कर दो. ओके, तो नेक्स्ट लाइन जो स्टार्ट 100 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो 100th लोकेशन पे सेव होगी. ओके, और वो जो 100 वैल्यू जो है वो कौन लेगा? LC लेगा. ओके, so LC always point to the next instruction and it is always incremented by 1. ओके, तो जो मेरी नेक्स्ट लाइन थी तो वो 101 पे सेव हुई है, तो थर्ड लाइन जो है वो 102 पे, मतलब +1 से वो स्टार्ट करेगा सेव करने के लिए, राइट? सो नाउ ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या करता है? एलसी की वैल्यू एक्सप्लिसिटली मॉडिफाई करता है. नेचुरली एलसी की वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट होती है. ओके, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरा 4 लाइन का कोड है, पहली लाइन 100 लाइन पे सेव है, 100 लोकेशन पे सेव है, दूसरी लाइन ऑब्वियसली किस पे सेव होगी? 101 पे, बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. ओके, लेकिन थर्ड लाइन
I am the user and I want to save that third line into the location 200. ओके तो 200 को पहले पॉइंट करना होगा जाके. ओके तो वो कौन करेगा, लोकेशन काउंटर करेगा, लेकिन उसकी नेचुरल टेंडेंसी +1 से ही इंक्रीमेंट होने की है. मतलब 102 से वो डायरेक्टली 103 पे ही जाएगा, लेकिन हमें मैन्युअली क्या करना है, उस लोकेशन को चेंज करना है, क्योंकि मुझे थर्ड लाइन क्या करनी है, 200 पे सेव करनी है. तो उसके लिए ओरिजिन हम यहाँ पे यूज करते हैं. ओके तो ओरिजिन 200 अगर हमने स्टेटमेंट लिखा तो एलसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी 102 से डायरेक्टली 200. मतलब ओरिजिन एक्सप्लिसिटली लोकेशन काउंटर की वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके उसके बाद है EQU. ओके फॉर एग्जांपल x एक मेरा सिंबल है और एक वेरिएबल है और वो किसी लोकेशन पे सेव है. फॉर एग्जांपल x है 200 लोकेशन पे सेव. ओके और मेरा एक और वेरिएबल है, मुझे सेम लोकेशन पे सेव करना है, मतलब ओवरराइट करना है उस लोकेशन को. ओके तो मैं क्या लिखूंगी, x EQU y और x EQU 300. मतलब मेमोरी ऑपरेंड ही नहीं रहना चाहिए, एड्रेस भी हो सकता है. तो EQU क्या करता है, उसके राइट हैंड वाले को क्या करता है, लेफ्ट हैंड वाले की जो भी मेमोरी एलोकेटेड है वो असाइन कर देता है. मतलब x and y will point to the same location. If I write x EQU y, then x and y will be point to the same memory location. Any doubt? Hello? Any doubt? Okay. Now third assembler directive is what, LTORG. Okay जैसे कि मैंने बोला LTOR literals. Okay literals क्या होते हैं, any constant value. Okay तो आपके प्रोग्राम में constant values है तो आपको literals and constant में कैसे फाइंड आउट करना है, अगर इक्वल टू सिंगल कोट 3 इक्वल टू सिंगल कोट 3 एंड सिंगल कोट कंप्लीट, अगर ऐसा है तो वो क्या है, लिटरल है. ओके और जस्ट 3 है तो वो क्या है, कांस्टेंट है. ओके सो ये जो लिटरल्स है जो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उनके सामने क्या रहता है, हमेशा इक्वल टू रहता है. ओके तो ये लिटरल्स आपके प्रोग्राम में है, उनको क्या करना है, आपको मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है. ओके अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, LTORG दैट इज लिटरल टेबल ओरिजिन. LTORG का फुल फॉर्म क्या है, लिटरल टेबल ओरिजिन. तो वो लिटरल्स को क्या करेगा, एड्रेस प्रोवाइड करेगा, LTORG. ओके तो इनको हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आपके प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एक्चुअली वर्किंग क्या है. ओके तो फिलहाल हमें असेंबली डायरेक्टरी 5 स्टडी करने हैं. तो फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकंड वन इज एंड, थर्ड वन इज ओरिजिन, फोर्थ वन इज EQU एंड द लास्ट वन इज व्हाट, LTORG. ओके अभी थियोरेटिकली हमने पढ़ा है ये, अभी हम एग्जाम की हेल्प से इसे देखेंगे कैसे यूज करते हैं. ओके so these are some advanced assembly directives and the basic was start and end. उसके बाद definition, location counter, it points to the next instruction, it is always incremented by 1. symbol जो भी आपके प्रोग्राम में names, variable names and label names है, उनको हम symbol बोलेंगे. literals को कैसे identify करना है, constant value के सामने अगर equal to sign रहता है, that will be your literal. and procedures मतलब क्या, जितने भी आपके पास methods या functions है आपके प्रोग्राम में, उनको हम यहाँ इसके आगे प्रोसीजर बोलेंगे. ठीक है सो जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो है LC. तो LC कैसे ऑपरेट होता है, लोकेशन काउंटर हाउ इट ऑपरेट्स. ओके तो प्रीवियस वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें 8 स्टेटमेंट्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, स्टार्ट 100. ओके तो स्टार्ट 100 इज नॉट अ इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इट इज असेंबलर डायरेक्टिव. इट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर दैट आपका जो प्रोग्राम का पहला लाइन है, अभी प्रोग्राम का पहला लाइन क्या है, move RA register comma X. start 100 it is an instruction. okay it is not a program line. प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट है move RARG comma X. ओके तो start 100 क्या बोलता है कि आपका प्रोग्राम 100th लोकेशन को सेव होने के लिए स्टार्ट होगा. ओके तो और वो जो 100 वैल्यू है वो कौन लेगा, LC लेगा. ओके सो नाउ LC की वैल्यू है 100. ओके तो उस लोकेशन पे जाके पहला स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट है मूव RA रजिस्टर कॉमा X, वो जाके सेव होगा. उसके बाद क्या करेगा, LC की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, +1 से इंक्रीमेंट होना. ओके तो थर्ड लाइन पे LC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101. फोर्थ लाइन पे क्या आ जाएगी, 102. फिफ्थ पे आ जाएगी 103, 4, 5 लाइकवाइज. ओके सो हम अभी देखते हैं. ओके जैसे कि प्रोग्राम की पहली लाइन थी 100, स्टार्ट 100 क्या बोल रहा था, प्रोग्राम की पहली लाइन को 100 लोकेशन पे सेव करो. तो LC ने क्या किया, LC की वैल्यू अभी
यहाँ पे क्या हुई है 100, उसके बाद +1 से वो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट 101, 102, 103, 104 एंड 105 तक। ओके, नाउ स्टार्ट एंड एंड के लिए एलसी वैल्यू नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, start and end are the instructions, or we can say these are the assembler directives, so it will not have LC value. Only the imperative statement and declarative statement will have the LC values. Okay, और अगर इस प्रोग्राम में कहीं तो origin दिखाई देता, LTORG दिखाई देता, EQ दिखाई देता, similarly उन लाइन्स को भी LC वैल्यू नहीं रहती, ठीक है, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रक्शन, दीज आर द असेंबली डायरेक्टिव्स। ओके, सो एलसी कैसे ऑपरेट होता है, नेक्स्ट लाइन से, स्टार्ट 100 के नेक्स्ट लाइन से एलसी की वैल्यू जो भी स्टार्ट के सामने दी है आपको वैल्यू, अगर यहाँ पे 200 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 200, 201, 202, 203 लाइकवाइज, जो भी स्टार्ट के साथ वैल्यू दी है वो है आपकी एलसी की वैल्यू, और उस लोकेशन से आपके प्रोग्राम की पहली लाइन सेव होने के लिए स्टार्ट होती है। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड अभी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सिंबल लिटरल्स एडी, एडी स्टैंड्स फॉर असेंबली डायरेक्टिव, आईएस स्टैंड्स फॉर इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, डीएस स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड लेबल। ओके, सो आपको क्या करना है, एडी, आईएस, डीएस, लिटरल्स, लेबल, सिंबल कौन कौन से आपको आइडेंटिफाई करना है इस प्रोग्राम में। ओके, तो प्रोग्राम क्या है, स्टार्ट 100, तो पहली लाइन जो है वो क्या है, टाइप ऑफ द स्टेटमेंट एडी, एडी, सेकेंड लाइन क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट आईएस, आईएस है। ओके, अभी सेकेंड लाइन में आपको लिटरल दिखाई देता है, सिंबल दिखाई देता है या लेबल दिखाई देता है या नहीं? यस मैम, व्हाट इज प्रेजेंट हियर, सिंबल, लिटरल और लेबल? लिटरल, literal because the constant is preceding with equal to sign. Okay, so second line is an imperative statement and which is having one literal which is equal to 2. Okay, now observe the third line, थर्ड लाइन को ऑब्जर्व करो, वो किस टाइप का है, लेबल, यस टाइप बताओ पहले, एडी, आईएस और डीएस? आईएस, आईएस है बिकॉज इट कंटेन्स द मूवर। ओके, उसके बाद उसके पहले क्या जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, तो लूप इज अ लेबल। ओके, सो लूप इज अ लेबल, द टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज आईएस। उसके बाद ये जो आपको एन दिखाई दे रहा है वो क्या है, व्हाट इज एन, एनी गेसेस? Number of time loops will run. नो जस्ट मतलब इसका कोडिंग का लॉजिक नहीं चाहिए मुझे, बस ये एन क्या है, इज इट अ सिंबल, इज इट अ लिटरल, इट इज अ लेबल? Observe the full program. It's a symbol. It's a symbol because आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे NDC5. ओके, DC मतलब क्या, डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि हमने DC का सिंटैक्स देखा था, सिंबल और लेबल, DC और DS और उसके सामने साइड। ओके, तो N क्या है आपका, सिंबल है। ओके, सिंबल मतलब वेरिएबल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है NDC5। ओके, सो लूप इज अ लेबल, the type of the statement is IS and N is my symbol. Next line is also IS and which has one liter which is 1 is equal to 1 is a literal. After that origin, yes tell me. assembler directive, Assembler directive. उसके बाद LTORG, tell me. assembler directive, Again origin next plus 2 assembler directive, and the last stop. Yes, last stop. क्या लगता है आपको क्या होगा, ये एडी है, आईएस है या डीएस है? आईएस, आईएस बिकॉज स्टॉप एंड एंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टॉप इज अ निमोनिक, एंड इज अ असेंबलर डायरेक्टिव। ओके, और स्टॉप के पहले क्या है, लास्ट विच इज लेबल। ओके, निमोनिक के पहले जो भी कुछ होता है वो होता है लेबल, जैसे कि यहाँ पे मूव आर था, उसके पहले था लूप, तो आपने क्या बोला, इट इज अ लेबल।
जैसे कि मूव एक निमोनिक है, सिमिलरली स्टॉप भी एक निमोनिक है, ओके, और उसके पहले कुछ है, मतलब ये क्या है, लेबल, ओके, अगर उसके बाद कुछ होता तो होता सिंबल, ओके, और उसके बाद ये स्टेटमेंट कौन सा है, NDC5 DS. DS, that is declarative, and final one is end is what, assembler directive. Okay, now you can identify the literals, you can identify the symbols, you can identify the label. Okay, symbol को कैसे identify करना है, DC या DS के पहले वाला, मतलब लेफ्ट वाला जो है वो आपका है symbol. ओके, तो इस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, सारे चीजें आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, पहला लाइन AD है, दूसरा लाइन IS है विथ लिटल 2, लाइकवाइज जैसे कि आपने अभी बोला है, आंसर्स मैन्युअली आपने दिए हैं, ठीक है. ओके, सो कमिंग बैक टू अवर हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज. सो एनी हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, एंड इट सपोर्ट्स 4 रजिस्टर्स, नॉट 3. यू कैन कंसीडर 5 ऑल्सो. Okay, it supports 4 registers A, R, E, G, B. Because it is a hypothetical, you can consider anything. Okay, but your book says use this 4 registers, so we are going to use this A, B, C, D registers. A, B, C, D registers. That is the 4 registers. Okay, so आपकी hypothetical language में अभी AX, BX, DX नहीं है, आपके hypothetical language में है A, R, E, G, B, R, E, G, C, R, E, G and D, R, E, G. Okay, 4 registers available है. Okay. अभी मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अभी इस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज का कुछ मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तो वो क्या है, पहले हमेशा होना चाहिए ऑपकोड. ओके, उसके पहले होता है लेबल विच इज ऑप्शनल. ऑपकोड के पहले आता है लेबल विच इज ऑप्शनल, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो. ओके, उसके बाद नेसेसरी जो है वो है ऑपकोड, उसके बाद है रजिस्टर ऑपरेंड एंड उसके बाद है मेमोरी ऑपरेंड. मतलब इसका एग्जांपल आप क्या बताओगे, ऑपकोड ऐड, register operand BREG and memory operand for example N. Okay, so add BREG N, मतलब क्या हो जाएगा, BREG की वैल्यू और N की वैल्यू की एडिशन होगी. ओके, बिकॉज द opcode is what add. Okay, you can't write like this, opcode, memory operand and register operand. Are you getting my point? मतलब आप क्या नहीं लिख सकते, add N, BREG. ओके, तो फर्स्ट ऑपकोड के बाद जो फर्स्ट जो ऑपरेंड है आपका हमेशा रजिस्टर होना चाहिए, हमेशा रजिस्टर, और उसके बाद होना चाहिए मेमोरी ऑपरेंड. ये आप स्वैप नहीं कर सकते, मतलब ऑपकोड यहाँ पे आएगा, मेमोरी ऑपरेंड यहाँ पे आएगा और रजिस्टर यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं हो सकता. आपको हमेशा यही फॉलो करना है, ऑपकोड, रजिस्टर ऑपरेंड एंड मेमोरी ऑपरेंड. ओके, सो दिस इज व्हाट मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. तो रजिस्टर पहले आने चाहिए यहाँ पे और उसके बाद मेमोरी ऑपरेंड. ओके, और जैसे कि हमने पहले देखे थे, इट सपोर्ट्स 11 डिफरेंट न्यूमोनिक्स और ऑपरेशंस. लाइकवाइज स्टॉप इज अ न्यूमोनिक. ओके, इट इज नॉट असेंबली डायरेक्टिव, इट इज IAS. Stop, add, sub, mult, move var, move m. Now what is the difference between this move var and move m? Move var अगर आप लिखते हो तो वैल्यू जो है रजिस्टर में मूव हो रही है, और अगर आप मूव m लिखते हो तो वैल्यू जो है मेमोरी ऑपरेंड में, मेमोरी ऑपरेंड मतलब आपका सिंबल. ओके, तो मेमोरी ऑपरेंड में वैल्यू आ रही है. ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है. कंपैरिजन के भी कुछ टाइप्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, वो आगे हम देखेंगे. ओके, कंपैरिजन के सब टाइप्स है कुछ. ओके, ब्रांच ऑन कंडीशन, अगेन we are going to see in the next examples. div for the division, read मतलब क्या, इनपुट लो यूजर से. ओके, और प्रिंट मतलब क्या, आउटपुट दो यूजर को. ओके, सो ये जो है आपके 11 निमोनिक्स. ओके, तो इनमें ये अगर आपको यूज करना है तो फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी ऑलवेज CPU रजिस्टर, सेकेंड ऑपरेंड शुड बी ऑलवेज द मेमोरी ऑपरेंड. ओके, एंड रीड एंड प्रिंट इंस्ट्रक्शन डू नॉट यूज फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब रीड एंड प्रिंट के लिए ओनली मेमोरी ऑपरेंड रहता है. ओके, एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शन हैज नो ऑपरेंड. अभी हमने देखा था लास्ट स्टॉप, लास्ट था लेबल एंड स्टॉप इज व्हाट आपका निमोनिक, उसके आगे कोई भी ऑपरेंड नहीं था. ओके, लिटरल भी नहीं था, सिंबल भी नहीं था, स्टॉप अकेले ही आता है. ओके, तो आपको ये चीजें याद में रखनी है कि फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी ऑलवेज द रजिस्टर, second operand should be always the memory, and the read and print instruction do not have first operand, and the stop instruction do not have any operand. Okay, so these are the rules which are provided for this hypothetical assembly language. Okay, so we will discuss this later. अभी तक किसी को डाउट है? Yes, any doubt? Hello? Any doubt? No, ma'am.
ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जस्ट क्विकली अभी आगे हम जाएंगे तो हाफ ही पार्ट कंप्लीट होगा। अभी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ही देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे स्कैन करता है असेंबलर, असेंबलर को कैसे बनाना है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू दैट, बट नाउ डू सम रिविजन. So in yesterday's lecture we have completed the components of system software or system program. After that today we have started the assembly language. Okay, what is assembly language? In that we are considering one hypothetical assembly language which supports the 4 registers and 11 different mnemonics. Okay, we have studied the type of assembly statements, assembly language statements, ADIS and DS. Again we have seen some rules. ओके okay? जब भी आपको यूज करना है मशीन इंस्ट्रक्शन तो आपका हमेशा पहले आना चाहिए ऑपकोड. ऑपकोड के पहले आता है लेबल विच इज ऑप्शनल. ओके, ऑपकोड के बाद ऑलवेज आना चाहिए रजिस्टर और उसके बाद आना चाहिए मेमोरी ऑपरेंड. ओके, सो उन 11 निमोनिक में से रीड एंड प्रिंट को फर्स्ट ऑपरेंड नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है. स्टॉप ऑपरेंड के लिए कोई भी स्टॉप इंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी ऑपरेंड नहीं रहता है, ये आपको हमेशा याद रखना है. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एलसी लोकेशन काउंटर. वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको एडीज भी आगे के समझ में नहीं आएंगे. ओरिजिन कैसे वर्क करता है, एलटी और जी क्या होता है. पहले एलसी क्या होता है, लोकेशन काउंटर होता है. इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. और एलसी की वैल्यू कहाँ पे दी जाती है, स्टार्ट के साथ दी जाती है. स्टार्ट के आगे कुछ वैल्यू होती है दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ योर एलसी. ओके, एंड फ्रॉम दैट वैल्यू एलसी इज गोइंग टू इंक्रीमेंटेड बाय 1 ओनली. Okay, if you want to modify the LC's value explicitly then you have to use the origin keyword or origin assembler directive. Okay, वो कैसे करता है ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Okay, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. I can repeat the PPTs or slides. If you have any kind of doubt please ask, because these theoretical terms are very important when you are going to solve the numerical one. We require one more theory lecture. After that we are starting the building the assembler with the help of assembly language program. Then you have to construct different kind of tables, then we have to use different kind of codes. Okay, that will be difficult. Yes, any kind of doubt? डाउट्स है अगर तो पूछो.
Yes, any doubt is there? No, ma'am. Okay, so you can leave the meeting.